Good evening, everyone. Welcome to today's session of NutriLift 360. Did you know our body has a main clock and multiple other individual clocks? Our lifestyle directly impacts them. We are going to understand how these impacts and also what do we mean by need index. We'll understand how these concepts can help us improve our health span. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarab. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully and welcome him onto this virtual stage. Over to you, Farooq. Thank you, Rachita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. Technology has made the daily life pretty fast, and people just don't have time for their health. And that is why you need to stay in a community. Every time I look around, that the people who are not in the community, falling prey to this, heart problems, pressure problems. And it is very sad because when you look at that, you get a feeling that, had they done, some things different, they probably would have survived. So there's a big difference between this lifespan and health span. And one needs to be, very careful in understanding that while technology can increase your lifespan, it does not necessarily increase your health span. In order to increase your health span, you need to take care of few basic things. And the basic things are do a little bit of exercise. Now the internet is flooded with stuff. I mean, they can tell you a lot of do this, do that, but there is nothing, better than doing simple exercises, doing simple things right that can help you have a good health span. Most people only value health when they lose it. For most people, it is too late. So I hope that you don't fall into this category. Just make sure that you're doing some exercises, eating the right food, making the right decisions, making the right choices, ensuring you're taking the right amount of supplements, making sure that you're getting the adequate amount of sleep, not too much and not too little. And that way you will find that your health will keep improving on a daily basis. So today you're lucky because Manoj is going to share with you a lot about NEAT. NEAT is extremely important because there's a limited time on which you can do exercise, but there's almost the entire 24 hours of the day where you can observe NEAT. For example, if you're getting up from a chair and going to the toilet, you can increase your pace. If you want to go to an ATM machine, you need not take the car. You can go walking, but walk with a faster pace. So small little things. If you're too stressed out in the office, how about just getting up and opening our website slimtrimsexythin.com and picking up a few exercises, seeing at the video, doing it for just a few minutes, and that is what gives you a better better health span. Making sure that the muscles are strong, making sure that your legs remain strong, and making sure that your overall health remains good. So listen to Manoj carefully because what Manoj has to share will have a significant impact on your overall health. Over to you, Manoj. Thank you very much, Farooq. Thanks a lot. And as Farooq said, today we'll be talking about NEAT and उससे पहले सर्काडियन रिदम के ऊपर बात करेंगे. एक मिनट जरा मैं थोड़ा चालू कर दूं. स्क्रीन विजिबल है रुचिता जी? ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके, तो
वेलकम एवरीवन। और आज का जो टॉपिक आपको फरूक जी ने बता ही दिया है कि नीट के ऊपर है और लाइफस्टाइल के ऊपर जो हमारे बॉडी क्लॉक का इम्पैक्ट है उसके ऊपर है ना। अब लाइफस्टाइल लोगों को पता होगा, इम्पैक्ट पता होगा, बॉडी क्लॉक शायद लोगों को, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो ऐसा है कि बॉडी क्लॉक जो भी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके ऊपर इफेक्ट किस किस चीज़ का पड़ता है? उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है हमारे फिजिकल एक्टिविटी का, नींद का, खाने का, क्या हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, स्ट्रेस का, और आज की डेट में जो स्क्रीन टाइम है उसका ना। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल का हो सकता है, टीवी का हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है, आईपैड का हो सकता है, और जो हम रात को जो खाना खाते हैं, मतलब लेट नाइट स्नैकिंग, उसको खाना नहीं बोलूँगा मैं, रात को जब हम काफ़ी देर तक जागते हैं और फिर कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, उसके ऊपर से बात, उसके ऊपर का सब फर्क पड़ता है हमारे बॉडी क्लॉक के ऊपर ना। बॉडी क्लॉक बेसिकली है क्या, पहला उसको समझ लेते हैं। बॉडी क्लॉक बेसिकली ऐसा है कि हमारे शरीर जो भगवान ने जो नेचर बनाया है, वो नेचर को एक सिस्टम के तरह बना हुआ है वो। अब कैसे है? सूरज उगता है, सूरज ढलता है, दिन भर हम काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। हमारे शरीर में जो भी हमारे अलग अलग अंग हैं, जो भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो भी अलग अलग सिस्टम है हमारे शरीर का, उसके हिसाब से चलता है। क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लो कि सपोज आपने रात को 7 बजे खाना खा लिया या 8 बजे खाना खा लिया, अगला खाना जो आप खाओगे सुबह 8 बजे के आसपास खाओगे, 12 घंटा आपने कुछ नहीं खाना है। जबकि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे में आप 3 या 4 बार कभी कभी खाना खाना या पीना कुछ ना कुछ पेट में डालते हो। अब जब आप खाओगे तो हमारे बॉडी का सिस्टम अलग तरीके से काम करेगा, और जब नहीं खाओगे तब अलग तरीके से काम करेगा। उसी तरह जब हम रात को सो जाते हैं या दिन भर जब हम काम करते हैं, तो ये दोनों टाइम पे हमारा शरीर का सिस्टम अलग अलग टाइम से काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा हर ऑर्गन एक समय के हिसाब से चलता है, और इसी को कहते हैं बॉडी क्लॉक। इसका जो मेन ट्रिगर पॉइंट होता है वो हमारे ब्रेन में होता है, और वहाँ से इफेक्ट पड़ता है अलग अलग बॉडी, अलग अलग शरीर पे, और अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों पे, और अलग अलग बॉडी क्लॉक पे। कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी क्लॉक है ये सिंक होना चाहिए आपकी एक्टिविटी के साथ। ये आप जो भी करते हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में बात करी, इन 6 चीज़ों के साथ में इसको सिंक होना चाहिए। अगर सिंक नहीं हुआ तो क्या होगा? आप इमेजिन करिए ना, कोई एक मशीन को पकड़िए आप, उसका एक गियर दूसरे गियर से फंसा हुआ है, लेकिन अगर गियर अगर अच्छी तरह से सिंक नहीं है, वो मशीन नहीं चलेगी सही तरीके से। उसी तरह से आपका शरीर भी अच्छी तरह से नहीं चलेगा, आपकी जो एक्टिविटी है अच्छी तरह से नहीं होगी, आपकी लिसनिंग एबिलिटी शायद अच्छी तरह से नहीं होगी, आपकी मेमोरी शायद अच्छी नहीं होगी, आप स्ट्रेस में आ सकते हो बहुत जल्दी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी क्लॉक नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हमें जहाँ तक हो सके बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब ये किन किन चीज़ से ट्रिगर करता है बॉडी क्लॉक? जैसे कि हमने कहा कि इसमें जो मेन क्लॉक होता है, मेन क्लॉक होता है ब्रेन में, और बाकी अलग अलग इंडिविजुअल क्लॉक होते हैं जो अलग अलग ऑर्गन में है। वो आपके हार्ट के साथ हो सकता है, लंग के साथ हो सकता है, लीवर के साथ हो सकता है, किडनी के साथ हो सकता है ना, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लाइट, है ना, जैसे 3 चीज़ें जिसका इफेक्ट पड़ता है आपके फिजिकल एक्टिविटी का बॉडी क्लॉक पे, जैसे ही कुछ लाइट हमारे आँख के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है, तो वो ट्रिगर करता है कुछ चीज़ को। जैसे ट्रिगर क्या करेगा, वो ये बताएगा कि भैया अभी तो जागने का टाइम है ना। जबकि हमारे बाकी अंदर के जो ऑर्गन के जो बॉडी क्लॉक हैं, जो घड़ियाँ हैं, वो अलग सिस्टम पे काम कर रही है। लीवर कह रहा है कि भैया रात हो गई है, हमें सोना है, जबकि ब्रेन को लाइट दिख रहा है तो वो बोलता है कि नहीं, जागो अभी। तो दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे और अलग अलग तरीके से सिंक करने की कोशिश करेंगे, जो कि नहीं होगा अच्छी तरह से। इसीलिए इसी तरह से एक्सरसाइज है कि हम रात का टाइम सोने का है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करने लगेंगे तो ब्रेन को कुछ और लगेगा, बाकी ऑर्गन्स को कुछ और लगेगा कि ये क्या हो रहा है। हमारे हार्ट बीट को, जहाँ पर हार्ट को स्लो होना है, वो हार्ट तेजी से दौड़ने लगेगा, है ना। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी क्लॉक के साथ मैच करे। क्यों जरूरी है? अगर एक्टिविटी और
टाइम अगर दोनों बॉडी क्लॉक अगर दोनों मैच करते हैं तो हमारे इफेक्टिविटी बढ़ा देता है, कई सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाता है। जैसे कि एक्सरसाइज से हमारे बॉडी स्ट्रेंथ करता है अगर वो मेन क्लॉक के साथ में अगर वो अच्छी तरह से सिंक है। तो आउटडोर एक्टिविटी अगर हम नेचुरल ब्राइट लाइट में करें तो ज़्यादा अच्छे से सिंक करेगा। टाइमली एक्सरसाइज अच्छी तरह से सिंक करेगा। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम पे हमारा बॉडी टेम्परेचर अलग अलग रहता है। किसी न किसी अगर आप रेगुलर आएंगे तो आपको किसी एपिसोड में आपको दिखेगा कि हमारे कौन से टाइम पे बॉडी टेम्परेचर लो रहता है, कौन से टाइम पे बॉडी टेम्परेचर हमारा सबसे हाई रहता है। और आपकी एक्टिविटी अगर रेगुलर रही, मतलब टाइम के साथ सिंक रही, क्लॉक के साथ में सिंक रही, तो आपका खाना भी आपको सही तरीके से शरीर में लगेगा, है ना। वो सही तरीके से डाइजेस्ट होगा, सही तरीके से मेटाबॉलाइज होगा और सही तरीके से उसके न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी के हर अंग तक पहुंचेंगे। नींद एक दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। आप इस चीज में अगर आप देखेंगे, अगर रात होती है तो मेलाटोनिन बढ़ता है। मेलाटोनिन बढ़ने से क्या होता है कि हमें कहता है कि सो जाओ, अभी हमें आराम करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम उसी को अगर उजाले में आ जाएंगे तो उस वक्त मेलाटोनिन का लेवल घट जाता है। तो जब रात होती है तो हमें नींद आती है, और जब मेलाटोनिन का लेवल घटने लगता है तो हमारा जो आलस है, जो हमारे बॉडी जो ठंडी पड़ी है, जो आराम से काम करने के मूड में है, वो जाग जाती है और फिर हम एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से लाइट भी इफेक्ट करता है हमारे बॉडी क्लॉक को और नींद भी इफेक्ट करता है। अब अगर आप सोचिए कि अगर आपने नींद के साथ खिलवाड़ कर लिया तो क्या होगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि किस तरह से नींदें खराब होती हैं। अगर हम रात को लेट सो जाएं तो क्या होगा, सुबह हम लेट उठेंगे, है ना। जबकि सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। सुबह आपका जो बहुत सारी चीज़ें जो शरीर के अंदर, जैसा इंसुलिन लेवल हाई रहता है, मतलब आप जो भी खा जाओगे तुरंत पचाएगा, तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और तुरंत सेल पे पहुंचा के तुरंत उसको यूज़ करेगा, क्योंकि आपको सुबह सुबह बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन अगर अगर आप रात को लेट सोए तो सुबह लेट उठोगे। आपका अगर सोने का टाइम कुछ फिक्स नहीं है, कभी किसी टाइम पे सो रहे हो, कभी किसी टाइम पे सो रहे हो, तो बॉडी उससे सिंक नहीं करती। बॉडी को पता नहीं चलता कि मुझे अभी कभी क्या करना है। जब आप ट्रैवल करते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जबकि जहाँ पर ज़्यादा टाइम होता है, आपको फ्लाई करना पड़ता है ज़्यादा टाइम, तो उस वक्त ज़्यादा टाइम इन द सेंस कि एक टाइम पे ज़्यादा देर तक, तो उस पर जेट लैग आपको होता है। मतलब आपका पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है कि अगर आप समझो थोड़ी देर पहले कोई ऐसी जगह पे थे जहाँ पे 6 घंटा लेट चल रही थी घड़ी, सपोज आप ब्रिटेन में हैं या फिर किसी और कंट्री, उस तरफ किसी और कंट्री में जो कि 5 घंटा पीछे चलते हैं हमसे, लेकिन अगर वहाँ से आप इधर आ जाओगे तो आपका 5 घंटा वो आगे हो जाता है, तो आपको उसे सिंक करना पड़ता है। तो इसलिए भी आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से भी। जब आपकी शिफ्ट वर्क होती है, जब भी आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या नाइट शिफ्ट होती है, उसमें भी आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब आपकी डे शिफ्ट होती है तब आप रात को आराम से सोते हो, लेकिन जब आपकी नाइट शिफ्ट आ जाती है अचानक से, तो आपको रात भर जागना है और सुबह करना है। इसके वजह से क्या होता है, इन सब डिस्टर्बेंस की वजह से आप हमेशा थकान महसूस करेंगे। आपको जागना नहीं है, लेकिन आपको नींद आ रही है, लेकिन आपको फिर जागे हुए कुछ ना कुछ काम करने की मजबूरी होती है, जहाँ पर आप फुल्ली फोकस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका मेंटल कैपेबिलिटी भी डिक्रीज होता है। आपका खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम आती है। आपका, क्योंकि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी लो हो जाती है, तो आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी लो हो जाएगा। इसके वजह से आपके गट के इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। आपको एसिडिटी भी होती है। कई लोगों को अगर आप देखेंगे रात को नींद अच्छे से नहीं आई तो उनको एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि आपका मेंटल कैपेबिलिटी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से आपका अलर्टनेस भी कम हो जाता है। अगर सबको नेक्स्ट डे आपको कोई जॉब पे जाना है या किसी बच्चे को स्कूल में जाना है, तो स्कूल में अच्छी तरह से ध्यान नहीं देगा पढ़ाई, और जब ध्यान पढ़ाई को नहीं देगा तो उसकी ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए आपको नींद बराबर रखनी है। अगर आपने नींद बराबर नहीं रखा तो इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आती है, जो कि लेट नाइट फूड, स्नैकिंग या क्रेविंग जो भी है। मतलब ये
कि अगर आप रात को जागोगे देर तक तो आपको भूख लगती है, क्योंकि बॉडी है अगर काम कर रही है, जागी है, तो उसको भूख लगना ही लगना है, तो मांगेगा ही मांगेगा कि भैया मेरे को तो भूख लग गई, लाओ। एक्चुअली में क्या है कि अगर आपको रात को भूख लगती है ना, तो आप ये समझ जाओ कि आपका सोने का टाइम था, आप सोए नहीं। आप जब खा लिए एक बार, जैसे कि हम तो बोलते हैं बताते हैं 6:30 बजे खा लेना चाहिए हमको, 6-6:30 बजे जैसे आपका सनसेट होता है उससे पहले आपने खा लेना चाहिए। लेकिन सपोज आपने अगर 6-6:30 बजे खा लिया, अराउंड 2-2.5 घंटे बाद आपको सो जाना चाहिए। सपोज 9-9:30 आपका सोने का टाइम आ गया। अब क्या, अगर आप उस टाइम पे नहीं सोए और उसको खींच लिया आपने 11 बजे तक, तो ऑब्वियसली है ये 4-5 घंटे का गैप आ जाएगा, आपको नींद आ जाएगी, नींद नहीं आएगी, भूख लग जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना चाहिए कि सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले आपने खा लेना चाहिए, और खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद आपने सो जाना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं सोओगे, अब होगा क्या, उसकी वजह से आपको भूख लगेगी। अब भूख लगने की वजह से क्या होता है, आप कभी भी खाओगे, कुछ भी खाओगे। अभी आप राइट साइड में देखोगे एक पिक्चर है, बॉडी तो हमारे एक सिस्टम से काम कर रहा है, जो ऊपर की ब्लैक लाइन दिख रही है ना। लेकिन क्योंकि आप कभी भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो नीचे की लाल लाइन दिखा रही है कि आप बार बार खा रहे हो। इसके वजह से क्या होगा, आपका जो फूड इंटेक करने का पैटर्न है वो गड़बड़ा गया जाएगा, जिसके वजह से आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह से आप ओबीज हो सकते हो, मोटे हो सकते हो, वजन बढ़ सकता है। इसके विपरीत अगर आप लेफ्ट वाला पिक्चर देखोगे, ऊपर की ब्लैक लाइन है जो आपका बॉडी प्रोसेस करता है, जिस तरह से फूड को, या ब्रेन क्लॉक के साथ में काम करता है, वो एक सिस्टमेटिक रिदम है। और उसी रिदम के साथ नीचे की ब्लू लाइन को आप देखोगे, आपका फूड इनटेक पैटर्न भी है। मतलब आप टाइम पे खा रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे जाग रहे हो, टाइम पे खा रहे हो। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, बॉडी क्लॉक के साथ आपका रिदम अच्छे से सिंक हुआ होगा, और आपको मतलब मोटापे तो आने से आप बहुत दूर रहो। ओके, आपकी बॉडी लीन रहेगी। तो लेट नाइट स्नैकिंग का ये प्रॉब्लम है। अब लेट नाइट स्नैकिंग को अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि आप अपने प्लान जो खाना प्लान करते हैं उसको बैलेंस्ड मील की तरह से प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपको जितना प्रोटीन खाना है उतना प्रोटीन उसके अंदर रहना चाहिए, जितना फाइबर खाना है उतना फाइबर होना चाहिए। ऑब्वियसली है कार्ब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको जिस तरह से हम बैलेंस फूड की बात करते हैं, बैलेंस मील की बात करते हैं, उस बैलेंस को अपने अपने खाने में उस बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए आपने, है ना। और अपना रूटीन बनाएं कि आप इतने बजे खाओगे, इतने बजे सोओगे, इतने बजे जागोगे। ये मेन पैटर्न आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको पता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक बार अडेप्ट हो जाएगी एक बार उस चीज़ के लिए, तो आपको सही टाइम पे नींद आनी चालू हो जाएगी, और सही टाइम पे आपकी नींद टूटनी चालू हो जाएगी। मतलब उठने का टाइम जब हो आप अपने आप उठ जाओगे। ओके, आपको अपने आप में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको भूख लगती है अचानक रात को, है ना। उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। जब आपने वो चीज़ को अवॉइड कर दिया तो ट्रिगर नहीं होगा। अगर भूख लगती है तो आपने कुछ और रास्ते आजमाने हैं, हम बताएंगे अभी उसके बारे में। आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप पानी पी सकते हो। होता क्या है कभी कभी कि बॉडी जब ब्रेन को सिग्नल भेजता है भूख लगने का, तो वो सिग्नल प्यास लगने का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सिग्नल एक ही तरीके से जाता है ऊपर। तो ब्रेन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये पानी मांग रहा है शरीर या खाना मांग रहा है। उस वक्त आप पानी पी के देख सकते हो 20-25 मिनट तक क्या इफेक्ट पड़ा है बॉडी। तो कभी कभी पानी पी के आप रह सकते हो, आप नारियल पानी पी के उसको ठीक कर सकते हो। प्रोटीन पाउडर जो हमारे पास एक है उसको आप पी के अपने भूख को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकते हो। ओके, आपको अपना बेड टाइम रूटीन, जो कि हमने बताया जो रूटीन इस्टेब्लिश करना है, वही है कि आपको सोने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आपको माइंडफुल ईटिंग करना पड़ेगा ना। माइंडफुल ईटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बोलने का मतलब है कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको खाना खाना पड़ेगा। जस्ट भूख लग गई है इसलिए नहीं खाना है। आपको जो खाना खाना है वो आपका बैलेंस डाइट के साथ होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, हर तरह का उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, है ना।
आप अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हो, कम कर सकते हो। आज आप ये देखेंगे कि लोगों को सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद स्क्रीन ही देखना है। ये 99% लोगों की आदत हो गई है कि सोने से पहले मतलब सोते स्क्रीन देखते देखते ही सोते हैं लोग आज की डेट में। जब लेटे हैं स्क्रीन देख रहे हैं, जब हाथ से फ़ोन गिर जाता है और तुम सो जाते हो तब तुमको नींद आ जाती है। अदरवाइज आप बिना टीवी मोबाइल देखे तो सोते ही नहीं है आज की डेट में कोई। तो आपको वो उससे अवॉइड करना है। सुबह उठते ही ज़रूरी नहीं कि आपको मोबाइल देखना है, बाकी आप अपना रूटीन काम कर लो, आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद देख लो, कोई इशू नहीं है ना? कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको। तो स्क्रीन टाइम को भी आपको लिमिट करना है, क्योंकि रात को अगर जो स्क्रीन टाइम के ऊपर से हम आगे बताएंगे क्या होता है उससे, आपको और पता चलेगा उसके बारे में। नींद आपने पूरी लेनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नींद आपका शरीर कितना मांगता है। इसका टेस्ट एक ये है कि अगर आपने दोपहर खाना खाने के बाद अगर आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आई, आपने पूरा नींद रात को नहीं लिया है अच्छे तरह से। ये इसका एक चेकलिस्ट है जो मैं अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर। अगर कभी इन केस ये सब कुछ करने के बावजूद भूख लग जाती है तो आप अनहेल्दी स्नैक्स को घर पे मत रखिए, आपके साथ में रखिए हेल्दी स्नैक्स। ओके, आप ड्राई फ्रूट साथ में रख सकते हैं, जिससे कि अगर आपने 10 बादाम भी खा लिया, समझो 8-10 बादाम भी खा लिए, तो आपके बॉडी को आपके स्टमक को थोड़ी देर के लिए फिल करके रख देता है ना, रादर देन हैविंग समोसा, वड़ा या सैंडविच, या फिर रात को निकल गया किसी चौक पे। और आजकल मुंबई में तो इडली वाले, मेंदू वड़ा वाले, डोसा वाले तो रात भर मिलते हैं, उसको फिर अवॉइड करिएगा। जो हेल्दी स्नैकिंग है उसको अपने हाथ में रखिएगा, अपने नज़दीक रखिएगा, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो। एक और चीज़ है खाने में, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, तो उसमें एक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कैफीन। कैफीन मतलब सिंपल शब्दों में समझे, कॉफ़ी। ओके, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से क्या होता है, आपको नींद नहीं आती, क्योंकि कॉफ़ी का काम ही बेसिकली ये है कि आपका नींद भगा देना। आपको एंग्जाइटी हो सकता है बहुत ज़्यादा पीने से, और हेडेक भी हो सकता है, क्योंकि आपकी नींद बराबर नहीं आती है, डिले कर देता है नींद को, तो बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि आपको सोने से पहले अगर आपने कॉफ़ी पी ली तो आपको नींद नहीं आएगी बराबर से, एसिडिटी हो सकती है आपको उसकी वजह से, है ना? तो अब ये है कि कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए। आपके लिए अप्रोक्सीमेटली 2 कप कॉफ़ी, 400 mg ऑफ कैफीन एक दिन के लिए काफ़ी है। और जो दूसरी चीज़ इसमें समझने वाली वो है कि आपको सोने से 6 घंटे पहले, मतलब ये कि अगर आपको रात को 10 बजे सोना है तो आखिरी कॉफ़ी जो आप पियोगे वो 4 बजे या 3:30 बजे पियोगे, उसके बाद आपने पीना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए, क्योंकि अगर आपने इसको जितना लेट पिया उसका इफेक्ट उतना लेट तक चलेगा, और रात को फिर क्या होगा, आपको 11 बजे तक बराबर नींद नहीं आएगी, या फिर हो सकता है 12 बजे तक नींद नहीं आए। मैं कई लोगों को देखता हूँ शाम को 6 बजे 7 बजे कॉफ़ी पीते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। हालांकि आपकी बॉडी बोल रही होगी मैं थक गया हूँ, सोना है, लेकिन नहीं, आप नहीं सो। तो इस तरह से आपके स्लीप क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। आपको अगर कैफीन कम करना है तो उससे कुछ टिप्स हैं। डीकैफीन के कुछ ड्रिंक्स आते हैं, वो पी सकते हो, जो टेस्ट में उसके जैसे ही रहते हैं कॉफ़ी जैसे, लेकिन उसके अंदर कैफीन नहीं होता है। ओके, आप इसे क्वांटिटी कम कर सकते हो। सपोज अगर आप 4 कॉफ़ी पी रहे हो दिन भर में, तो उसको 3 पे ले आओ, 2 पे ले आओ, फिर आस्ते से 3 से 2 पे ले आओ। अगर आप 2 पी रहे हो तो 2 पे से 1 पे लेके आओ। आप टाइम एडजस्ट करिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सोने से 6 घंटे पहले आपकी आखिरी कॉफ़ी होनी चाहिए। कॉफ़ी पीने की इच्छा, आप पानी पी लीजिए, ये एक और तरीका है। आप हर्बल टी पी सकते हैं। हर्बल टी मतलब ये कि आप इसे घर पे बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ढूंढो बाहर जाके कि कहाँ से मुझे हर्बल टी मिलेगी, क्योंकि हम वैसे भी आपको बोलते हैं कि पैक फूड नहीं खाना चाहिए, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है। आप अदरक, काली मिरी, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, उसका पाउडर, आप इलायची, लौंग, दालचीनी, है ना, इन सब का पाउडर को आप पानी में डाल के उसको छान के पी सकते हो। आपको अगर थोड़ा टेस्ट चाहिए तो आप उसमें हनी डाल सकते हो, आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप अपने लिए ट्राई कर लीजिए कि आपको कौन सा टेस्ट पसंद आता है, कौन सी चीज़ आपकी बॉडी को अच्छे सूट करती है, कौन सा सीज़न है, कौन से सीज़न में क्या लेना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हो, पता लगा सकते हो।
तो इस तरह से आप काफ़ी से आप हर्बल टी की तरफ आ सकते हो, क्योंकि बॉडी कभी कभी क्या होता है मालूम है, गर्म चीज़ मांगती है कि हमें कुछ चीज़ गर्म चाहिए, उस वक्त आप ये गर्म चीज़ ले सकते हो। और कोई भी चीज़ आप जब खाते पीते हो तो उसके लेवल को चेक कर लिया करो कि उसके अंदर क्या चीज़ कितनी है, ओके। और अपने हाथ में कभी भी कॉफ़ी का अगर सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना है तो हेल्थी स्नैक्स और हेल्थी बेवरेजेस रखिएगा। आप जूस रख सकते हैं, फ्रेश जूस विदाउट शुगर, विदाउट प्रिजर्वेटिव, नो पैक्ड बेवरेजेस, है ना। इस तरह से चीज़ें आप रखेंगे तो आपको कैफीन इंटेक कम हो सकता है जब आपको होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्क्रीन दिखाया था जिसमें हमने मेलाटोनिन लेवल की बात की थी कि जब भी आपकी आंखों से रोशनी आपके आंखों से होते हुए जब आपके ब्रेन में चलती है, पेनल ग्लैंड तक पहुंचती है, जो कि मेन जगह है जहाँ से पूरा सिस्टम आपका ऑपरेट होता है। तो होता क्या है कि जब भी आप स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन देखना मतलब टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, है ना, इन सब चीज़ का जो भी स्क्रीन देखते हैं तो उसमें से एक लाइट छुटती है जिसको बोलते हैं ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट बहुत डेंजर है, डेंजर इन द सेंस आंखों के लिए तो है ही है, लेकिन जो हमारे ब्रेन के लिए जो काम करता है, जितनी देर तक हम ब्लू लाइट को नज़र में रखेंगे हमारे को नींद उतनी दूर हो जाएगी। ब्लू लाइट से क्या होता है, हमें अलर्टनेस आता है, मेमोरी वो टाइम पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ओके, अटेंशन स्पैन बढ़ता है, रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है, लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आपको मतलब कैसे आप इसको पता लगाओ कि ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये काम करिए, आप अगर आप रात को सोने के टाइम पे मोबाइल लेके या तो लैपटॉप लेके लेटते हैं, उसके जगह पे आप बुक लेके रहिए। आप देखेंगे जैसे आपने बुक लेके बिस्तर पे गए, लेटे और पढ़ना चालू किया, विद इन 15 मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। वहीं पर अगर आपने मोबाइल लेके गए और मोबाइल देखते गए तो आपको 2 घंटे तक भी शायद नींद नहीं है। ये इसका इफेक्ट है आपके उस पर, स्क्रीन टाइम पे। और जब 2 घंटा आप एक्स्ट्रा जाग गए, 2 घंटा आप लेट सोए, सुबह आप लेट उठोगे, अगर मजबूरी में सुबह आपको टाइम पे उठना भी पड़े तो फिर दिन भर आपके साथ क्या होगा, आप की मेंटल एबिलिटी कम हो जाएगी, आप एब्जॉर्प्शन कम करोगे, आप लर्न कम करोगे, आप याद कम रख पाओगे, आप स्ट्रेस में रहोगे क्योंकि आप एकदम थके हुए हो, डिप्रेशन में रहोगे। ये दोनों अगर कंटिन्यू होता गया तो एक बार आपके लिए क्रोनिक डिजीज इतना हो जाए, क्रॉनिक हो जाएगा ये कि आपको कभी भी नींद बराबर नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी। और जब भी आपका नींद डिस्टर्ब होगा तो नींद का वेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा कई बार देखा गया है, ये प्रूव हो चुका है। और इस वजह से फिर आपका वजन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको ब्लू लाइट से दूर रहना है, ओके। आप ब्लू लाइट से आप एक्सपोजर कैसे कम करोगे, आप अपने टाइम को लिमिट कर लीजिए, आप अपने ऊपर टारगेट लगा दीजिए कि मुझे इतने देर से ज़्यादा नहीं देखना है मोबाइल या टीवी या लैपटॉप, या सोने से 2 घंटे पहले मुझे कुछ भी नहीं देखना है, या मैं पढ़ूंगा या घर पे बातें करूंगा या शायद मेडिटेशन करूंगा, ओके। ये सब आप सोच सकते हो सके तो नाइट मोड को इनेबल कर लो, वार्म लाइट को आप इनेबल कर लो। अगर आप मोबाइल देख भी रहे हो तो एक ब्रेक लेते रहिए, बार बार कंटिन्यू मत देखते रहिए। और जैसा कि मैंने कहा, किताब पढ़ना उसका सबसे बेस्ट अल्टरनेट है। किताब पढ़िए, आपको पता चल जाए क्या हो रहा है, क्योंकि मोबाइल पे भी हम नॉर्मली क्या करते हैं, तो कुछ ना कुछ न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर रील देखते हैं। आप किताब पे देखिए ना, आपको पता चल जाएगा, सबसे फायदेमंद है। क्रॉनिक स्ट्रेस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब कोई भी चीज़ आप कोई भी प्रॉब्लम जब आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंटिन्यू रहती है तो क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाती है। जब भी क्रॉनिक स्ट्रेस होगा तो उससे आपके बॉडी को फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिदम पूरा बिगड़ जाएगा। आपका पूरा सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है, आपका मेंटल हेल्थ बराबर नहीं रहेगी, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। तो इन चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहना है आपको। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो,
क्योंकि आपके जब भी आप एक्सरसाइज करोगे ना, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आप हमेशा देखिएगा, कभी भी आप अगर नहीं करते हो तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, 2-3 दिन तक ट्राई करो। जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आप डंबल उठा के चालू हो जाओ फर्स्ट डे से, आप वॉकिंग भी कर सकते हो, है ना, एक पर्टिकुलर स्पीड पे। जैसे फ़ारूक बताते हैं कि 4 किलोमीटर कम से कम 40 मिनट में चलना है, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नहीं चल पाता कोई बात नहीं है, मैक्सिमम स्पीड जो आप ले सकते हो उस पर लीजिए आप। ओके, करके देखिए आप 30-40 मिनट तक चल के देखिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपको रिफ्रेश फील करोगे आप। ओके, आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। नींद अगर आप पूरी लोगे तो आपका वैसे स्ट्रेस बहुत सारा कंट्रोल में हो जाता है। हेल्दी ईटिंग आदत रखिए आप, है ना, और हेल्दी ईटिंग मतलब न्यूट्रिशियस ईटिंग। ब्रेक लेते रहिए काम से, क्योंकि कंटिन्यूस फोकस करके भी ऐसा जरूरी नहीं कि आपका फोकस पूरा ही बना रहेगा, वैसे ही बना रहेगा, उसी लेवल का बना रहेगा, नहीं। ब्रेक लेने से फिर आप वापस अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। कोई हॉबी में आप इंगेज कर लीजिए अपने आप को, कोई एक आदत, अच्छी हॉबी पकड़िए, उसके ऊपर आप इंगेज कर लीजिए, आप उसमें जा सकते हैं। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करिए, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें जो आजकल आप सीख सकते हो, और ये आप खुद ही अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हो। तो किस तरह से आप अपने सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करोगे, मतलब सही रखोगे सर्काडियन रिदम को? एक्सरसाइज करके टाइम पे, जितना टाइम चाहिए उतनी देर के लिए। सोने का टाइम और जागने का टाइम आप के ऊपर स्टिक रहोगे, मतलब हिलोगे नहीं वहाँ से कि नहीं मुझे सोना है मतलब वो टाइम पे सो जाना है, जागना है मतलब वो टाइम पे जाग जाना है। कैफीन को आप कम करोगे, 6 घंटे वाला सिस्टम आप याद रखिएगा, सोने से 6 घंटे पहले, 7 घंटे पहले आखिरी कॉफ़ी। स्क्रीन टाइम आप अवॉइड करोगे ज़्यादा, सोने से कम 2 घंटे पहले आप स्क्रीन को नहीं देखोगे। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कुछ टेक्निक सीख लोगे, और लेट रात को कुछ भी चीज़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं बात पे, हम जो है कहलाता है नीट। ओके, तो क्या सवाल ये है कि क्या आप नीट कर रहे हैं? अब आप बोलोगे नीट क्या होता है, तो पहले हम नीट की बात कर लेते हैं। होता यह है कि हम, जैसे फ़ारूक ने बताया था कि आपको अगर एटीएम भी जाना है तो चल के जाइए, जब चल के जा रहे हो तो थोड़ा तेज चल के जाइए, है ना। जब आप अपने काउच से या बेड से उठ के आप अगर बाथरूम या वॉशरूम जा रहे हो तो भी थोड़ा तेज चल के जाइए, है ना। वहाँ के लिए तो हम बाइक तो नहीं लेते अपने घर के अंदर, या कोई व्हीकल तो यूज़ नहीं करते, तो थोड़ा तेज चलिए, चलोगे आप बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा तेज चलिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जो आपकी रूटीन एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज में नहीं गिनी जाती वैसे तो, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज की तरह काम करती है, इसे कहा जाता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि वो जो काम आप कर रहे हो, जो रूटीन काम है, एक्सरसाइज का काम नहीं, जो एक्सरसाइज नहीं कहा जाता जिसे, लेकिन एक्सरसाइज के जैसा गिना जाता है, जो कैलोरी बर्न कर रहा है, तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है नीट एक्टिविटी। एग्जाम्पल ले लीजिए, 40,000 साल पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पूर्वज हंटर थे और गैदरर थे, जानवर को मारते थे और उनको खाते थे। 10,000 साल पहले के आसपास उन्होंने पेड़ पौधे और जानवरों को पालना चालू किया, मतलब खेती शुरू करी और जानवरों को पालना चालू किया। 125 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और 20 साल या 25 साल पहले से तो कंप्यूटर एज चालू हो गया। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में अगर आप देखिए 40,000 साल पहले या 10,000 साल पहले, 10 से 12 घंटा हमारे पूर्वज काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब से वो 8 से 10 घंटा हो गया। मेहनत था फैक्ट्री के अंदर भी या रास्ते पे भी, लेकिन पिछले 20 साल से, जब से कंप्यूटर एज आया, 20-25 साल से, हम एक जगह बैठ के काम करते हैं। आरामदायक कुर्सी, आरामदायक हाइट का टेबल और अच्छा सा कंप्यूटर, कंटिन्यू हम स्क्रीन पे देख रहे हैं और एक ही जगह बैठे हुए हैं। मतलब जहाँ पर हम पहले 10 से 12 घंटा हिलते डुलते थे, शरीर के साथ कुछ ना कुछ काम शरीर से कुछ ना कुछ काम कराते थे, वो अब आ गया है कुल मिला के 25 मिनट में। तो ये जो रिड्यूस हुआ है काम, जो एक्सरसाइज नहीं था, लेकिन एक्सरसाइज के जैसे ही हमारी बॉडी उसका कैलोरी बर्न करती थी, वो अब रिड्यूस हो गया। इसी रिडक्शन को कहते हैं कि अभी नीट रिड्यूस हो गया है।
नीट रिड्यूस होने की वजह से क्या हो गया कि हमारी कैलोरी कंजम्पशन तो सेम रही है, क्योंकि हमने खाना वही खाना चालू रखा जो हमारे पूर्वज खाते थे, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो करते थे, या वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं जो वो करते थे, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कि जो मोटापा बढ़ने का जो मेन कारण है आजकल, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। इंडिया के अंदर हर 4 में से 1 आदमी आज की डेट में ओबीज है, और ये आपको हर जगह पे दिखेगा। आपको बढ़ता हुआ जो ये है कि कितने परसेंटेज लोग मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हर एज ग्रुप में दिखेगा आपको। 20 साल, 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल, हर एज ब्रैकेट में आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। उसी तरह से ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ अर्बन में हो रहा है, रूरल में भी हो रहा है। मैं पहाड़ से आता हूँ, उत्तराखंड से आता हूँ, बहुत डिफिकल्ट था वहाँ पर पहला खेती करना, और लोग करते थे, पूरा फैमिली उसी खेती के ऊपर डिपेंड रहता था। लेकिन आज की डेट में आप उत्तराखंड में चले जाओ, आपको कोई खेती करते हुए नहीं दिखता तुम्हें। मुश्किल से 2 से 3% लोगों जो होंगे जो खेती करते। सबकी ज़िंदगी आसान हो गई है, घर तक गाड़ियाँ जा रही हैं, पहले बिल्कुल नहीं था। पहले उनको 10-10, 12-12 घंटा चलना पड़ता था अपने घर तक पहुँचने के लिए, मेन बस स्टैंड से लेके या मेन रेलवे स्टेशन से। तो ये है नीट, और ये नीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अनजाने में अपनी कैलोरी बर्न करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इस चार्ट को देखिएगा आप। हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें हम 4 तरीके से, जो भी कैलोरी हम लेते हैं उस कैलोरी को हम 4 तरीके से आउट करते हैं। एक होता है बीएमआर। बीएमआर मतलब कि हम बिना हिले डुले जितनी कैलोरी हमारी बॉडी यूज़ करती है बॉडी फंक्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं बीएमआर ना। बॉडी फंक्शन मतलब है आपका हार्ट चल रहा है, आपका ब्लड दौड़ रहा है, आप सोच रहे हो, आपकी पलकें झपक रही हैं, है ना, ये हो गया आपका बीएमआर। 70% जो आपका कैलोरी जो यूज़ होता है वो बीएमआर पे यूज़ होता है। उसके बाद 3 और चीज़ें हैं, ईट, नीट और टीईएफ। ईट मतलब ये कि एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस। मतलब ये कि आप एक्सरसाइज करके आप उसकी कैलोरी बर्न कर रहे हो। जैसे आप वॉकिंग को निकल गए 1 घंटे के लिए या फिर पौने घंटे के लिए, है ना, या फिर आप जिम चले गए या अपने घर पे ही एक्सरसाइज कर ली 30-40 मिनट तक, तो ये आप सोच के काम करते हो कि मुझे कैलोरी बर्न करना है, इसलिए आप वो काम करते हो। उसे कहते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस। नीट जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी एक्टिविटी हो रही है। ये आपका ना अप्रोक्सीमेटली 15% यूज़ करता है टोटल कैलोरी का, जो कि एक्सरसाइज से ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे आजकल कहा जाता है 10,000 स्टेप या 12,000 स्टेप चलो, है ना। उसमें थोड़ा झोल है, थोड़ा डिटेल में उसको हम कभी बात करेंगे उसके लिए। बट कहने का मतलब ये है कि इसीलिए कहा जाता है कि हिलिए जगह से, एक जगह बैठे मत रहिए, दैट इज नीट। और फिर बचता है तीसरा, चौथा चीज़ जिसको बोलते हैं टीईएफ, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए भी हमें कुछ कैलोरी चाहिए होती है ना। उस कैलोरी को, वो कैलोरी जो हमें खाना पचाने के लिए यूज़ करना है उसे कहते हैं टीएफ, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे खाने के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 10% हम कैलोरी अपने खाना पचाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं थोड़ा उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ थोड़ा सा, कि रफली प्रोटीन जो है वो 20 से 30% ज़्यादा लेता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 15% लगता है, और फैट को 5%। तो कहने का मतलब है कि प्रोटीन आप जितना ज़्यादा खाओगे उतना कैलोरी ज़्यादा, अपने ही कैलोरी, अपने 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 आप को ही डाइजेस्ट करने के लिए उतना ज़्यादा कैलोरी लेगा प्रोटीन। ओके, फैट सबसे कम और बाद में आपका कार्बोहाइड्रेट। ये सारी चीज़ें हैं जो नीट एक्सरसाइज के अंदर आ जाती है, या इससे वो फ़ायदे होते हैं आपको। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, बैठने की जगह पे आप खड़ा रह जाओ, खड़े रहने की जगह पे चल लो, चलने की जगह पे आप थोड़ा तेज चल लो, थोड़ा तेज चलने की जगह पे आप थोड़ा दौड़ लो, दौड़ने की जगह पे थोड़ा फुटबॉल खेल लो, है ना। ये एक्टिविटी का स्टैंडर्ड ऊपर ले जाता है आपका। आप इस तरह से कर सकते हो। आप गार्डनिंग कर सकते हो, अगर आपके उतने लकी हो, अगर आप बम्बई में, तो ये सब जल्दी मिलता नहीं है,
लेकिन अगर आप लकी हैं, आपका गार्डन है, आप गार्डनिंग करो, आप उसके अंदर एक्टिविटी करोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका एनर्जी बर्न होगा। अगर आप बंबई में है तो लिफ्ट की जगह पे आप स्टेयरकेस ले सकते हो, किसी भी बड़े शहर में है तो, ऐसा है ना। रोज के काम करिए, जरूरी नहीं कि आपको हर काम के लिए बाई की जरूरत है ना, मेड की जरूरत है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप हर वो काम करिए जहाँ पर हर 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 ऐसा छोटा मोटा काम जहाँ पर आपको टू व्हीलर या बाइक का कार ले जाने की जरूरत नहीं हो, आधा 1-1.5 किलोमीटर अगर दूर है तो आप चल के चले जाओ, है ना, जैसा ग्लोसरी लाने के लिए। या फिर अगर समझो आप अपने ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर अगर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सको तो 1 किलोमीटर दूर पार्क कर लो, आप थोड़ा चल के जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना नीट बढ़ा सकते हो। ये पर एक थोड़ा चार्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि कितना नीट इफेक्टिव है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप एग्रीकल्चर वाला जो आदमी है वो 2500 कैलोरी उसको एवरी डे काम के लिए लगता है, एग्रीकल्चर में काम के लिए। और बाकी जो 1600 कैलोरी 2000 कैलोरी जो उसको नॉर्मल लगेगा वो अलग है। जो खड़े होकर काम करते हैं, शॉप असिस्टेंट या होम मेकर लेडीज जो घर पे काम करती हैं, वो रफली 150 कैलोरी 1500 कैलोरी 1500 कैलोरी नीट में यूज कर लेती हैं। ठीक है, उसी तरह से आप देखेंगे अगर जो बैठ के काम कर रहा चेयर पे, है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरी भी पूरा यूज नहीं करते हैं नीट। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना मेहनत का काम करोगे, जितना चलने का काम करोगे, उतना ज़्यादा आपका नीट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा नीट बढ़ेगा उतना आपका कैलोरी आउट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कैलोरी आउट बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा आपकी बॉडी रहेगी, मोटापा नहीं आएगा। नीट बढ़ाने के तरीके 10 सारे स्टेप आप पर डे कर लो, सीढ़ियाँ चढ़ लो, आपको बैठने की जगह दी है, आप बैठे बैठे खड़े होकर भी काम कर लो, थोड़ा घूमते फिरले काम कर लो। हर आधे 1 घंटे के अंदर ऑफिस में अगर आपका 1-2 फ्लोर का ऑफिस है, ऊपर नीचे चल लो, कोई आपको बोलने वाला नहीं आप कहाँ जा रहे हो, है ना। और क्या कर सकते हो आप, कम से कम 2.5 से 3 घंटा दिन भर खड़े रह के या तो चल के काम कर लो। आप अपनी गाड़ी को खुद धो सकते हो, ग्रोसरी लाने के लिए आपको ऑटो की या बाइक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, चल के ला सकते हो। जब भी आप चलो तो थोड़ा तेज़ी से चलो, जैसे आप मॉल में चलो तो मॉल में थोड़ा तेज़ी से चल सकते हैं, एग्जाम्पल है ये। इतना सब कुछ करने के बाद क्या, इतना सब कुछ करने के बाद है साइन। साइन क्या है, साइन बेसिकली वो चीज़ है जो हम आपको कहते हैं कि आपने हमेशा करना। आप हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ उठिए, ऊपर वाले को धन्यवाद करिए, उसने आपको जो भी दिया है, जहाँ भी दिया है, जैसे भी दिया है, तो उसके लिए आप धन्यवाद दिए, है ना। उसके बाद आप अपने खाने को न्यूट्रिशियस खाना बना के खाइएगा। आपके इंटेंशन एकदम क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या पाना है, फिर वो मॉनेटरी वाला हो, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट वाला हो, चाहे एजुकेशन वाला हो, चाहे डेजिग्नेशन वाला हो। आपको वो क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है और उसके लिए क्या नई चीज़ सीखनी है, आप वो सीखते रहिए। और कभी भूलिएगा नहीं, एक्सरसाइज इज मस्ट, इसके बगैर कुछ नहीं होने का। शायद मैंने अपने बहुत सारे पॉइंट आज क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रिचित्या। एब्सोल्युटली मनोज, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही आराम से, बहुत ही विस्तार से, आई थिंक बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे हम अपना हेल्थ स्पैन बढ़ा सकते हैं अपने खुद के बॉडी क्लॉक को समझ के एंड अपना नीड बढ़ा के। With that, ladies and gentlemen, we come to an end of this session, and we'll see you in the next one. Until then, good night, stay safe. See you in the next one.